another one is a rough one. This is one is smooth surface. Smooth surface means what? Coefficient of friction is 0, right? And another surface that has some, that is not smooth, that is rough. Okay, so it has some. Now see, this is a body of mass m. Mg will, suppose this is theta. They have given theta equal to kinetic friction 45 degree. They have mentioned that theta here is equal to 45 degree. No issue. We'll keep writing theta, and the point we will insert the value. This is the same, theta equal to 45. This is length L, and say this is smooth surface and this is rough surface. It has a coefficient of friction. See, both initial diagram is same here. Both this will, weight will act vertically downwards. So see, this is theta, so this one is 90 minus theta. Any doubt? And again normal reaction. This, if this is 90 minus theta, if theta, it is theta, it is 90 minus theta, so it is theta again here. Okay, so it is mg cos theta, that is normal reaction. That is, as we are considering a smooth surface, so friction does not arise, so we will not consider the normal reaction, right? Why? What is so different for frictional cases? Frictional force F is less than or equal to mu into normal reaction. If you are considering normal reaction by n, then mu is the coefficient of friction. It is less than equal to, many questions in JEE are asked. Now we are considering here a case of NEET questions, but in JEE they have given that this is less than equal to. We are considering the case of equality anyway. Now see, in case of smooth surface, the friction that is equal to mu s into mu into n, and this coefficient can be coefficient of, let us study the topic in detail, coefficient of static friction that is required to start the body. Okay, put the body in motion. And then next is coefficient of kinetic friction, right? Kinetic friction, once the body is moving, then coefficient of kinetic friction is applied, not. And another thing that we need to know is this is greater than, that is force required to start the body is much greater than that is required to keep it moving, right? That is the meaning of, once we say coefficient of static friction is greater than coefficient of kinetic friction, it means static friction is required to start the body and kinetic friction is keep it moving. That once body is started, then much lesser force is now required to keep it moving. That is the meaning of this inequation or inequality that we have written. Mu s is greater than or equal to mu k. Okay, now see, this is rough surface and this is a smooth surface. Now here normal reaction that we have explained earlier, and will be equal to mg, and it is very simple, and it will act backward. Frictional force F equal to mg cos theta into mu, that is equal to, we are considering mu into n, and n is equal to mg cos theta, and here there is no friction, so only downward force is acting, mg sin theta. See, friction is not always retarding the object. There is a problem given somewhere in a good literature. Let me put the name of the book also, Krutov, that shows that if there is a smooth patch, that is means I am saying that friction assists a body in a rolling motion. If two bodies are rolling down, we need not consider unduly that friction, if friction is there, it will velocity will become lesser. See, rolling will not occur if friction is not there at all, right? So in this case rolling cannot take place because rolling requires friction. Okay, that we are not considering that issue now.
Now mg sin theta is the force applied here, and here mg sin theta is acting, but backward force that is equal to mu into n, that is equal to mu into mg cos theta is all acting backwards. So net force acting here is, in the first case, is mg sin theta, and in the second case is mg sin theta minus mu into mg cos theta. I don't think there is any doubt here, right? But we should never consider that if there is a friction, it is always going to reduce the speed. See, I have mentioned the case of rolling friction, rolling, that it is assists. Now let's see further what it is asking. Given a body, a body takes to twice as much time to slide down on rough surface. So it is the general case. अब फ्रिक्शन केस जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे उसे स्लाइड डाउन करने में इस एल लेंथ है ना, इसकी इंक्लाइन की, इसकी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है, ओके, ये सेम बॉडी है, सेम इंक्लिनेशन है, इसको स्लाइड डाउन करने में जो टाइम लगता है फर्स्ट स्मूथ के कंपैरिजन में ट्वाइस टाइम लगता है, ओके ओके, इसके कंपैरिजन में ट्वाइस टाइम लगता है। तो ये पूछ रहे हैं क्या हमसे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा हमारा। बहुत अच्छा, लेट अस कंसीडर हाउ वी आर डूइंग इट। ओके, तो यहाँ पे फोर्स आया हमारा mg sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g sin थीटा, लेंथ हमारी कितनी है l, तो फोर कितना हो गया हमारा इक्वेशन, l इक्वल टू हाफ e1 t1 स्क्वायर। हाँ, आज सेम हम इक्वेशन इसके लिए लिखते हैं, हाफ e2 t2 स्क्वायर, और t2 जो है हमारा कितना गुना है, 2t1 है, हम t2 से रफ सरफेस के लिए लिख रहे हैं ना, रफ सरफेस, और t1 स्मूथ सरफेस के लिए। इन दोनों की इक्वलिटी डाल दो और वैल्यू भी पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a1 बन जाएगा g sin थीटा, और g 45 रख देंगे तो g/√2 बन जाएगा। 45 sin थीटा कितना होता है, g/√2, ठीक है। और तो पहले केस में a1 हो गया हमारा g/√2, और a2 क्या हो गया हमारा, अब कहानी के डिफ़िकल्ट है, हाँ, तो ये हो गया हमारा ये वाला, इसको m से डिवाइड करेंगे ना, तो f/m कितना हो जाएगा, f कितना है हमारा, f/m, ठीक है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, तो m तो कैंसिल हो जाएगा बटे m होल डिवाइडेड बाई m कैंसिल हो गया, तो g sin 45 माइनस म्यू g cos 45, और दोनों सेम वैल्यू देते हैं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन a2 हो गया हमारा, तो g/√2, तो यहाँ g/√2 आप बाहर ले लो, तो क्या बचा, 1 माइनस म्यू बचा। कोई डाउट, a2 की वैल्यू। अब बस क्या हो गया, सब पूरी कहानी पूरी हो गई ना। अब क्या कर लो, ये इक्वेशन लगा लो, इन दोनों के चूँकि लेंथ सेम लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं, इस पे भी और इस पे भी, तो हमारा क्या हो गया इक्वेशन, हाफ a1 t1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। ये हाफ तो कैंसिल हो गया ना यार, तो इसमें हो गया हमारा a1 जो है g/√2 है, g/√2 इंटू टी स्क्वायर है, और इसमें क्या हो गया, g/√2 एक्सेलरेशन की वैल्यू इंटू 1 माइनस म्यू, और यहाँ पे t2 जो है वो 2t1 के बराबर है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2t का स्क्वायर, ओके, तो ये काट दो, इससे टी स्क्वायर आएगा वो इससे कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू इंटू 4, बोलो बच्चों, तो 1 इक्वल टू 4 माइनस 4 म्यू, तो हमारा क्या हो गया, 4 म्यू इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 3/4 या 0.75, यही आंसर है इसका। हमें लगता नहीं यार कितना आसान सवाल है, देखो, हाँ, 10th लेवल का सवाल हो गया बिल्कुल।
10th में ये सब डिस्कस किया हुआ है। mg sin थीटा डाउनवर्ड काम कर रहा है स्मूथ पे, यहाँ पे बैकवर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली 10th स्टैंडर्ड पे चला गया सवाल। ठीक है, ये mg cos थीटा बैकवर्ड कैसे, क्यों, थीटा नीचे काम किया। ओके, यहाँ पे दिखाया हमने थीटा नीचे, mg नीचे काम किया, ये 90 मैंने थीटा है तो ये थीटा हो गया, mg cos थीटा हो गया। नॉर्मल रिएक्शन हमारा mg cos थीटा हो गया, देखो ये हो गया। ओके, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, इसके बराबर हो गया। तो ये फॉरवर्ड फोर्स mg sin थीटा था, बैकवर्ड फोर्स रफ स्मूथ सरफेस पे, रफ सरफेस पे mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये आ गया कहानी। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चूंकि दोनों लेंथ हेल्थ ट्रेवल कर रहे हैं इसलिए दिस इक्वल टू दिस आसानी से आ गया हमारा 3/4। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। कितना आसान सवाल है ना, इजी सवाल है ना। ओके, मूव ओवर टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिर्फ एक आध सवाल है, थोड़े टिपिकल है, बाकी लेवल एनसीईआरटी का है। देखो दोबारा बहुत आसान सवाल देखने जा रहे हैं हम लोग। ओके, देखो क्या सवाल है, कितना इजी सवाल है। बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स, दो कार हैं मतलब मास सेम है सब, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, वर्क डन के बराबर होता है कि नहीं, चलो बताओ। अब दो सिमिलर कार हैं, इनकी पहले की काइनेटिक, सपोज ये कार ए है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है 100 जूल। कार बी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है 225 जूल है। समझ लेना, ये काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हम। ओके, अब पहले दोनों ने ब्रेक मारा तो ये जो गाड़ी रुकी ये हमारी ब्रेक मारने पे 1000 मीटर के बाद रुकी, और ये गाड़ी जो चली वो 1500 मीटर पे रुकी। तो बोल रहे हैं कि एफ ए बाई एफ बी क्या होगा, जो ब्रेक लगाया, क्या लगा, इसने ब्रेक लगाया, एफ ए फोर्स आया ब्रेक का, रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, ब्रेक लगाया, और इसका फोर्स है एफ बी। तो पूछ रहा है कि एफ ए बाई एफ बी, ये कितना इजी सवाल है, बोलो। कॉम्प्लिकेटेड सवाल है एक आध, लेकिन वो उसके बाद आएगा। तो चलो, एफ ए बाई एफ बी। अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन है ना, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स है ना। अभी ये इसका मुकाबला कर रहा है ना काइनेटिक एनर्जी का, फ्रिक्शन फोर्स। तो फिर क्या होगा, वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, अब दोनों में यहाँ फोर्स एफ ए लिख दो और यहाँ पे 1000 मीटर लिख दो, दूसरे केस में एफ बी लिख दो आप, और 1500 मीटर पर रुक रहा है, कहानी हो गई ना पूरी। अब ये बराबर है हमारा 100 जूल के, हो गया सवाल, और ये हमारा 225 जूल के। अब ये एक सवाल कंपटीशन पूछने लायक था क्या है। तो एफ ए हो गया हमारा एफ ए इंटू 1000 अपॉन एफ बी इंटू 1500 इक्वल टू 100 बाई 225। ठीक है, काटना शुरू करो इसे, 2 जीरो कट के, 2 3, ठीक है, 25 चौका 100 और 25 नवैया 225, 4/9। तो एफ ए बाई एफ बी इक्वल टू 3/2 इंटू 4/9, ये से कटा 2 और ये कटा 3, आंसर कितना है 2/3। इससे आसान सवाल कहीं देखे हो क्या, हाँ, कितना ज़्यादा आसान सवाल था भाई। ये है हमारा 1000 मीटर, ये होगा 1500, फोर्स इंटू डिस्टेंस किया। नीट का पेपर कभी हार्ड नहीं हो सकता, एनसीईआरटी के कोई सवाल कर ले तो। ठीक है, 2 सवाल हो गए हमारे। अब एक सवाल हार्ड है, थोड़ा सा, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। चलो देखते हैं। एक बॉब है, एक हैवी मास एम का, हाँ, कितना आसान सवाल है ये भी। अरे यार, एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 में उसके बियॉन्ड नहीं जाता ये सवाल। ठीक है, अब देखो इस सवाल को, ये हमारा बॉब लटक रहा है, इसका मास है में, और साहब इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी v0 दे दी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हम लोग टेक ले सकते हैं ना 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv0 स्क्वायर।
ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। और जान लेना टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और कितनी हो गई, हाफ mv0 स्क्वायर। ये टोटल है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि हमने दिया इसे स्ट्रिंग किसी पॉइंट थीटा पे स्लैक कर जाती है। चलो देखते हैं, तथा ऊपर नहीं जाती है, ये किसी पॉइंट थीटा पे जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी पेपर में, आपके नीट के पेपर में, वो इस तरह से दिया कि थीटा पे स्ट्रिंग स्लैक कर जाती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का, ज़्यादा नहीं। देखो ये हमारा वर्टिकल प्लेन में हमारी बॉडी चल रही है ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन में चल रही है एक सर्कुलर पाथ पे, तो mg नीचे लगेगा। बोलो कोई डाउट? ये थीटा है तो ये 90 मैंने थीटा होगा, ये mg लगा डाउनवर्ड, भाई वर्टिकल प्लेन में बॉडी घूम रही है तो ये mg लगा, तो ये कितना होगा, mg cos 90 माइनस थीटा, दैट इज mg साइन थीटा लगेगा अलोंग द, और इधर क्या लगेगा, mv स्क्वायर अपन आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो हम एक इक्वेशन देखो, इधर लगा mv स्क्वायर अपन आर, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा, तो हमारा mg साइन थीटा जो है वो mv स्क्वायर अपन आर के बराबर हो गया। ठीक है, mm काट दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जी आर साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? चलो अब जरा हाइट नाप लो, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट हो गई। देखो ये से आर इसका रेडियस है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgr हो गई। अब ये हाइट देख लो, ये हाइट अगर y है, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर y है, और ये r है, तो y बाई आर इक्वल टू, अरे लेंथ तो रेडियस तो सेम ही रहना है यार, ये y है ये r है, तो y बाई आर इक्वल टू साइन थीटा, तो y इक्वल टू आर साइन थीटा। मतलब भाई साहब ये जो हाइट है ना हमारी, वो कितनी हो गई, r साइन थीटा हो गई। कोई डाउट? तो टोटल हाइट कितनी हो गई, टोटल हाइट हमारी हो गई जहाँ पे स्लैक कर रहा है वह r प्लस आर साइन थीटा। बोलो बच्चों, तो टोटल हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ स्लैक हो रहा है, टोटल, हाँ तभी तो इससे घटा के हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, हो गई mg, और जो h है, हाँ हो गई r प्लस आर साइन थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। r कॉमन mgr 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ये अब हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई जिस पॉइंट पर स्लैक हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितनी है, हाफ mv0 स्क्वायर, ये ठीक है, तो हो गया हाफ mv0 स्क्वायर माइनस mgr 1 प्लस साइन थीटा। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ स्लैक हुआ है। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, इसको हम इसको भी करते हैं हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर की वैल्यू तो रखी हुई है यहाँ पे, चलो लिख दो यार, हाफ m जी आर साइन थीटा। ओके, तो हाफ mv0 स्क्वायर माइनस mg r 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये नीचे ये भी 2 से मल्टीप्लाइड है, ये भी 2 से मल्टीप्लाइड, तो यहाँ चला जाएगा। दूसरी बात m भी काट दें थ्रू आउट हम, तो हो जाएगा v0 स्क्वायर में 2gr 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू जी आर साइन थीटा। तो v0 स्क्वायर कितना हो गया, जल्दी बताओ। जी आर यहाँ कॉमन है और जी आर, तो जी आर कॉमन ले लो। ठीक है, 2 प्लस साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, प्लस जी आर साइन थीटा और है ये,
अरे यार ये वाला जी आर साइन थीटा और ये हमने जी आर कॉमन ले रखा तो 2 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, तो टोटल मिला के जी आर अगर हम कॉमन लें तो 2 प्लस 3 साइन थीटा हो गया। इसमें कोई मुश्किल है क्या यार, कितना आसान सवाल है कि नहीं भाई। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये है ना, इसका इनवर्ड वो हमने निकाल लिया, हाइट निकाल ली, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है टोटल इतनी है, ओके, और हाइट जितनी थी टोटल हाइट इतनी है, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी, इसके डिफरेंस के बराबर। आसान तो है यार, हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। अब टोटल में से इतना पोटेंशियल एनर्जी घटा दोगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अच्छा, अब वी स्क्वायर किसके बराबर है, जी आर साइन थीटा। कहाँ कहाँ लिखा है, ये लिखा है, हाँ। वो पूछ क्या रहा है, वी स्क्वायर अपॉन वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू जी आर साइन थीटा अपॉन, ठीक है, जी आर 2 प्लस 3 साइन थीटा। जी आर को उड़ा दो, क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा। कितना इजी सवाल था। तो पूछ रहा है वी बाई वी जीरो कितना होगा, कितना आसान सवाल है, बोलो। साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा, कितना इजी है, 2025 में आया, हाँ। इजी क्वेश्चन है कि नहीं, कोई डिफिकल्टी है इस सवाल में, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सब आसान सवाल है, नीट में हार्ड सवाल नहीं आ सकते, आप ये जान के चलो। देखें पेज भी है हमारे पास कि ख़त्म हो गए यार, पेज ढूंढना मुश्किल काम, एक और पेज निकल आया, ठीक है। अब देखो एक नया सवाल इन्होंने पूछा है, ये फिर बहुत इजी सवाल है ना। और ये सवाल जो दिख रहा है ना एनसीईआरटी का है, चैप्टर 3 का, हाँ ये हार्ड सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। लेकिन सवाल वहाँ भी डिफ़िकल्ट है तो ये भी सवाल डिफ़िकल्ट है तो एनसीईआरटी का ना, हाँ। तो चलो पहले इजी ये सवाल करते हैं, इजी वाला। कह रहा है बॉल, ये भी 2025 का सवाल है, 2025 है ना, 2025 का। कितना इजी सवाल है देखो। और नीट का एग्ज़ाम क्या है, आप